غریب بیوہ عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا دیا، پڑھائی کروانا شروع کر دی۔ اس کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرنے لگا اور کچھ سالوں کے بعد بہت ہی اچھی تعلیم اس نے حاصل کی اور اس کی عمر یوں ہی بڑھتی رہی۔ اس نے بڑھتی عمر کے ساتھ اچھی ڈگری حاصل کی اور اچھی جاب بھی حاصل کر لی۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا اب تو جوان ہو گیا ہے، تجھے میں نے ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ جوڑ کر پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اب تیری جاب بھی لگ گئی ہے، تو اچھے عہدے پر بھی آ گیا ہے، تو میری مرضی یہ ہے کہ تیری شادی کر دوں۔ تیرے ماموں ہیں جو، ان کی بیٹی کو میں نے بہت دن پہلے زبان دی تھی کہ جب میرا بیٹا اچھے عہدے پر آ جائے گا، اس کو میں اچھا پڑھا لکھا لوں گی، اس کی اچھی نوکری لگ جائے گی، میں اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں گی۔ وہ بہت دن سے آسرا لگا کر بیٹھی ہے کہ میری شادی تیرے ساتھ ہوگی، تو بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس کے بیٹے نے جھنجھلا کے کہا، ماں کیا بات کرتی ہو؟ اس کے ساتھ غریب کے ساتھ میری شادی آپ نے لگا دی؟ آپ کو معلوم ہی نہیں میں نے اچھی ڈگری حاصل کی ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے میں نے اچھی تعلیم حاصل کی، اچھی پڑھائی حاصل کی ہے، اور میں ایک اچھا عہدے دار انسان ہوں، میری اچھی جاب ہے، میں اس غریب انسان سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ماں سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ جب اتنی بات اس نے کہی نا، اس کی ماں کے کلیجے پر ایک چھری سی چل گئی۔ اس کی ماں کا کلیجہ ہل گیا کہ جس بچے کو پروان چڑھایا، جس بچے کو اتنی اچھی تعلیم دی، لوگوں کے برتن دھو کر، لوگوں کے کپڑے دھو کر، برتن مانج کے پیسے اکٹھے کیے، اور آج اس کی رشتے کی بات کر رہے ہیں تو یہ غریبی کی بات کر رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میں نے کس غریبی کی حالات میں اس کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا، اور اب اس کی جاب لگ گئی، اچھے پیسے آنے لگے، تو یہ بھول گیا اپنی اصلیت کو۔ اس نے اپنے دل ہی میں سوچا۔ جب اس تک بات پہنچی لڑکی تک، لڑکی بڑی مایوس ہو گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، ادھر ماں کا بھی دل ٹوٹ گیا، ادھر لڑکی کا بھی دل ٹوٹ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا، ماں میرا ٹرانسفر کہیں دوسری جگہ ہو گیا ہے، شہر میں ہو گیا، میں چاہتا ہوں نا شہر میں جا کے ہم اپنا ایک اچھا گھر بنائیں گے، شہر میں جا کے اچھا گھر بنا کے تیار کر کے اور وہاں رہیں گے۔ وہ ماں تھی اس کی خوشی میں ہی اس کی خوشی تھی۔ اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تیری مرضی ہے، تو جہاں چاہتا ہے ہم بھی تیرے ساتھ وہیں رہیں گے۔ اس کی ماں نے کیا کیا، اپنا سارا سامان باندھا، اس کے لڑکے نے سارا سامان لیا، شہر نکل گئے۔ کچھ دن کرائے پہ رہنے لگے، اور تھوڑے دن کے بعد انہوں نے اپنا وہاں پر گھر بنا لیا۔ جہاں پر ان کا گھر بنا تھا، سامنے ہی جسٹ ان کا پڑوسی تھا، اس کی جو لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت تھی، تو یہ جب باہر نکلتے تھے تو ان کے گھر پر ان کی نظر پڑتی تھی۔ تو لڑکا جب بھی کبھی اپنے آفس جاتا تھا تو لڑکی سے بارہا ملاقات ہو جایا کرتی تھی، بات چیت بھی ہو جایا کرتی تھی، قریب میں ہی گھر تھا۔ اب بات چیت یوں بڑھی کہ یہ پیار محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن ماں سے بیٹے نے کہا، ماں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پڑوس میں گھر ہے، جو پڑوسی ہیں ہمارے، اچھے اخلاق کے ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ہاں رشتہ لے جائیں اور ان کی بیٹی سے میری شادی کر دیں۔ ماں تو ماں تھی، ماں کا دل تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا کہ میری پسند کی لڑکی سے اس نے شادی نہیں کی، حالانکہ وہ غریب ہی تو تھی، غریبی کی بنا پر اس نے شادی توڑ دی۔ چلو بہرحال بیٹا ہی تو ہے میرا، جو یہ کہتا ہے ماننا پڑے گی۔ اس کی ماں پڑوسی کے گھر میں رشتہ لے گئی، رشتہ۔ لائف میں انٹرٹینمنٹ اور مزہ چاہیے؟ زپی پر لوڈو کھیلو گے تو ملے گا دھماکے دار انٹرٹینمنٹ اور جیتنے کا موقع صرف 2.5 منٹ۔ رشتہ لے گئی، رشتہ ہو گیا، کیونکہ اچھے عہدے پر تھا، مالدار ہو چکا تھا، وہ لوگ بھی مالدار تھے۔ رشتہ ہو گیا اور کچھ ہی دن کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی ہو کے بہو گھر میں آ گئی۔ ماں کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے میرے بیٹے کی شادی ہو اور جلدی سے ہنستا کھلتا پریوار ہمارا ہو جائے، بچے ہوں اس کے، اور جلدی سے ہم دادی بن جائیں۔ یہ امیدیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کی بھی یہی امید تھی کہ جلد سے جلد ایک ننھا پھول آئے اور ہم بھی دادی کہلانے کے لائق ہو جائیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک
विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। उसकी माँ बहुत खुश थी कि आज हम भी दादी बन गए, हमारे घर में हमारा पोता आया है। दादी बड़ी खुश थी और वो इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लगी अपने पोते से कि नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सब अपने ज़िम्मे इसने ले लिया। एक दिन बहू ने अपने शौहर से कहा, सुनो मेरी एक बात, ये जो तुम्हारी माँ है इसको घर से बाहर निकाल दो। अब इसका रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हर वक्त कहीं इधर से उधर, कहीं खांसना, कहीं कुछ। मैं ये चाहती हूँ कि ये घर से निकल जाए। उसके लड़के ने कहा, क्या बात करती हो, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैं उनको कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ। लड़की ने कहा, अगर नहीं निकाल सकते हो तो उसे समझा दो कि वो सही बर्ताव करे, सही सलूक करे और ज़्यादा चहल पहल घर में ना रखे। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। वो माँ जिसने बचपन में उंगलियां पकड़कर इसको चलाया, घुमाया कि एक दिन ये हमारा सहारा बनेगा, आज कहता है मैं उसको समझा दूंगा कि इधर उधर ना जाया करे, ज़्यादा बातचीत मत किया करे, शांति के साथ बैठी रहा करे। ये बेटा अपनी माँ के बारे में कह रहा है, अपनी दुल्हन से, अपनी बीवी से। वो बीवी दिखने में तो बहुत अच्छी थी, दिखने में तो हसीन और जमील थी, खूबसूरत थी, लेकिन दिल से साफ नहीं थी। थोड़े दिन ऐसे ही हिसाब चलता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, ऐसा है सुनो, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगी, अब फैसला तुम्हें करना है, या तो उसे रखो या तो हमें रखो। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ इनको भी थोड़े दिनों के लिए भेज देते हैं। बेटे ने क्या किया, अपनी माँ को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। उसकी माँ वहाँ रहती रही, काफ़ी दिनों तक रहती रही। जो माँ हो उसको अपने बच्चे की तड़प तो आती है, याद तो आती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ओहदेदार हो जाए या कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ की नज़र में बेटा बच्चा ही होता है। उसको याद आई कि मेरा बेटा कैसा होगा, चलो चल के देख लेते हैं। अपने पोते की भी याद आई कि पोते को भी देख लेंगे, बहू को भी देख लेंगे, बहुत दिन हो गए रिश्तेदार के यहाँ। रिश्तेदार भी क्या सोचते होंगे कि यहीं रहने लगी, यहाँ के घर वालों ने निकाल दिया शायद। तो ये ख्याल इनके दिल में आया, घर से बाहर निकल आई और अपने घर पर पहुंची। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा थोड़ा तेज़ी के साथ खटखटाया, अंदर से दरवाज़ा खुला, बहू बाहर निकल के आई। कह गई, अच्छा तुम हो, मैं तो समझ रही थी पता नहीं कौन है, तुम फिर आ गई। उसने कहा, मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे अपने पोते की बहुत याद आ रही थी, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा आप लोगों से मिल लूँ। एक माँ है, अपने ही घर में आने की इजाज़त चाहती है। इतने में उसका बेटा भी आ गया। बेटे ने कहा, माँ अब आ ही गई हो तो फिर आओ, अंदर आ जाओ। जब इतनी बात की तो अम्मा का कलेजा फट गया। ये मेरा बेटा, इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया, इसने पेशाब जहां पर कर दिया तो उस गीली जगह पर इसे दोबारा नहीं लिटाया, मैं उस जगह पर लेटी और इसे सूखे में लिटाया। लेकिन आज ये अपनी माँ से कहता है कि माँ अगर आ ही गई हो तो आ जाओ। अल्लाह अकबर। माँ का दिल टूट गया, आंख से आंसू निकले, सैलाब की तरह आंसू बहने लगे। माँ अंदर गई, जाके अकेले में सिसकियां लेके रोने लगी। या अल्लाह, ये कैसा दिन है, ये क्या मुझे देखना पड़ रहा है। अपनी ही औलाद, अपनी ही माँ को ये कहती है कि अगर आ ही गई हो तो फिर आ जाओ। खैर कोई बात नहीं, माँ ने कहा मेरा बेटा है, कह दिया तो क्या हुआ। थोड़े दिन तक यूं ही चलता रहा। माँ अकेले में सिसकियां ले लेके रोती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आज मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुमने अपनी माँ को ना यहाँ से नहीं निकाला तो जिंदगी भर के लिए मुझे भूल जाना, जिंदगी भर के लिए मुझे छोड़ देना। मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपने मायके चली जाऊंगी अगर अपनी माँ को तुमने मेरे घर से नहीं निकाला। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, तुम तसल्ली रखो, मैं कुछ करता हूँ। उसने अपनी माँ को बुलाया, कहने लगा, माँ आज हम एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, आप तैयार हो जाओ और हम एक रिश्तेदार के यहाँ चल रहे हैं, बहुत दिनों से वो लोग बुला रहे हैं। माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। मैंने कहा, ठीक है, अगर चल रहे हो तो चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ तैयार हुई, बेटा तैयार हुआ, बहू तैयार हुई, पोते को तैयार किया और एक गाड़ी में निकल गए। यूं ही गाड़ी चलती रही और चलते चलते एकदम गाड़ी रुक गई।
कहाँ पर? ओल्ड हाउस। जब ओल्ड हाउस आया, माँ ने देखा ये ओल्ड हाउस। माँ ने समझ लिया कि यहाँ छोड़ने आए हैं, लेकिन माँ ने अपनी ज़बान से कुछ बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज से तुम यहीं रहोगी, आज से तुम यहीं रुकना, यही तुम्हारा घर है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर बेटा वापस आ रहा था। उसको याद आ रही थी कि माँ को छोड़ आए बीबी के कहने पर। ऐसे उसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि अभी एक आवाज़ आई। बीबी ने कहा रुको रुको, गाड़ी को रोको, देखो सामने ट्रक है। इतनी आवाज़ जब उसके कानों में आई, उसने ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो एकदम गाड़ी पूरी नाच गई और ट्रक के सामने आ गई और पूरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी चकनाचूर हो गई। उसकी बीवी वहीं पर मर गई और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो सही और सालिम रहा। और उसके पैर कट गए, वो लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया। उसको अस्पताल भेजा गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जब वो अस्पताल में था तो अपनी माँ को याद करता था, कहता था माँ तू कहाँ है, ओल्ड हाउस से जल्दी आ जा। माँ तेरी बहुत याद आ रही है। माँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। माँ मैंने तुझे अपनी बीवी के कहने पर ओल्ड हाउस छोड़ा। मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, तू मुझसे मिलने के लिए आ जा। जब लोगों ने बताया उसकी माँ को तेरे बेटे के साथ ये हाल हुआ, उसकी माँ का कलेजा फट गया। उसकी माँ ने फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और अपने बेटे के लिए दुआ की और अपने बेटे के पास गई और बेटे से कहने की बेटा तूने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। क्योंकि जो माँ को नाराज़ करता है ना, खुदा भी उससे नाराज़ हो जाता है। और जिससे खुदा नाराज़ हो जाता है ना, उस पर ज़रूर खुदा का कहर आता है। क्योंकि अल्लाह तो क़हार व जब्बार है। तूने मुझे नाराज़ किया, अल्लाह भी नाराज़ हुआ और तेरे साथ ये हुआ। बेटा अब मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तो याद रखे माँ को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना, बाप को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना। माँ को कभी परेशान मत करना, बाप को कभी परेशान मत करना। माँ बाप की उम्मीदों पर हर वक्त खरा उतरना। माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन के भी दिखाओ। माँ बाप को सुकून दो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो। अगर तुम माँ बाप की खिदमत करोगे ना तो जन्नत ज़रूर तुम्हें मिलेगी। क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो कभी माँ को भी नाराज़ मत करना, कभी बाप को भी नाराज़ मत करना। अगर अभी भी तुम अपने माँ बाप से नाराज़ हो ना, तो आज ही उन रूठे हुओं को मना लेना, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। और अगर तुमने अपने माँ बाप को नहीं मना पाया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर अल्लाह ही जाने कि तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा मकाम होता है माँ बाप का, तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें। जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी सेवा करें।